ہونے کا خطرہ ہے, مگر گھر میں کہ پیسے نہیں ہیں, بھیک مانگ سکتا ہوں. خودکشی سے بچنے کے لیے زنا کر لینا کیسا ہے؟ خودکشی کر لے بھائی تو. یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا, یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے. میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے, اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات خوب سمجھو, اس میں بھی بیلنس ضروری ہے. آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے. جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی, ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو, شدید نیند آ رہی ہو, بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی. یہ کمبخت پہلے جائے گا, لیٹے گا, پھر خیالی پلاؤ چلائے گا, پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا, پھر فوج فلم دیکھے گا, پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ میں خودکشی کر رہا ہوں. تو مر جا بھائی, تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا, ماحول کو خراب کرے گا. اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ, مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں, کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے, آگ میں جاتا ہے وہ. تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو. کیوں ٹک ٹاک پہ بیہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ, بند کر کے رکھ دو. دیکھو میں موبائل نا, میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے, اتنی کالز آتی تھی, میں اٹھاتا تھا, اس کو جواب دے رہا ہوں, اس کو جواب دے رہا ہوں, پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی طنز کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو, کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے, کوئی کسی پہ, آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا, ابھی نیند اڑ گئی نا, اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی, اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں, اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی, پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی, اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی, وہ فلاں دائر اسلام سے خارج ہے, یہ سارے مولوی 2 نمبر, بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ, لاکر میں بند کر دو. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں, مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا, اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے. 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے, مجھ سے صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے. ڈپریشن دینا سیکھو. میں نے کیا کیا, جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی. کال کرو فون بند ہوگا, 1 گھنٹے بعد دوبارہ. پہلے کیا ہوتا تھا, کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا, اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن. میرے بیوی سے جھگڑا ہوا, میں نے یوں کہہ دیا, میں نے طلاقیں دے دی, میں نے کہا طلاق ہو گئی, کرے کہاں سے ہو گئی, میں تو غصے میں تھا. ابے ہو گئی ہے. اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے. مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے, بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو. بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا, لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے. بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں, لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی. میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی. کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر, یا بیچنے کا وعدہ کر لو. اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا, میں نہیں لے رہا, میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ, یہ تو صحیح نہیں ہوا. اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط, اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے. آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا, پھر بھی وہ کرے گا ضرور. وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا. وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو. اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں, پھر دوسرا فون, پھر تیسرا فون, بیوی بھاگ گئی ہے. ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے. پھر چوتھا فون آئے گا, مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے. میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا. اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ. اگلا یہ مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ. بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب. آپ اتنے بیانات, یار ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار. آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے. بھائی میرے پاس ہو یا نہ ہو, میرا یہ کام نہیں ہے. میں مولوی ہوں, میرا کام بیانات کرنا ہے, میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے. یہ میری فیلڈ نہیں ہے. شادی دفتروں میں جاؤ, سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے, کسی کی خدمت کرو. آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے, تو کرو نا خدمت. تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے, گٹر صاف کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟
मेरी फील्ड नहीं है, मेरी जो फील्ड है मैं उस फील्ड में खिदमत करूंगा ना। तो फिर फोन लाइन काट दो तो फिर गुस्से होते हैं। बात तो पूरी सुनो मुफ्ती साहब, लाइन क्यों काट रहे हो? मैसेज आना शुरू। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया था। फिर हमने क्या किया, टेंशन देना सीखो लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें, कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो। भाई रिश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप, अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, यानी खुद मेरे लिए भी, उनको लिए तो यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना। भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए कहीं, यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी उसने। अब लोगों के मैसेज आते हैं, सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता। तो मैंने एडमिन से बोला भाई तू फोन तो उठा लिया कर। जब हमने किसी को असिस्टेंट बनाया, वो कह रहे भाई सारा दिन फोन आता रहता है। मैं सारा दिन फोन नहीं उठाता हूँ। अभी इसका भी हम हल सोच रहे हैं। जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, 24 घंटे तो वो भी फोन नहीं उठा सकता। तो हमने कहा 1 घंटा दे दो। उसने कहा मुझे इमरजेंसी। यार इसका मैं अभी हल तलाश कर रहा हूँ, लोगों का राब्ता कैसे हो। अब हमने उसको फिल्टर किया कि भाई इस तरीके से आपकी मुलाकात भी होगी हमसे, आप मसाइल पूछेंगे उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ तो मसाइल ही फजूल हैं, वो हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा बंदा जो रिश्तों के लिए आ रहा है वहीं से चला जाए। भाई हम रिश्ते नहीं कराते। और कोई बीवी भाग गई है तो मैं कोई पुलिस में नहीं हूँ कि आपकी बीवी पकड़ के ले आऊँ मैं। तो इस तरह की चीज़ें तो वहीं तो फिल्टर हो के ना काम के बंदे आ जाते हैं। फिर तो वो मैं मिलता हूँ उनको, मैं टाइम भी देता हूँ मुलाकातों का। अब मैंने क्या किया, फ्लाइट मोड पे मोबाइल। अब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन बंद, फ़ोन बंद, फ़ोन बंद, फ़ोन बंद। फिर 6 घंटे बाद फ्लाइट मोड खोलता हूँ तो गालियाँ आई हुई होती हैं। मुफ्ती साहब तकब्बुर से, कल किसी का इंडिया से मैं मुझा तकब्बुर से अल्लाह बचाए। तो मैं कहता हूँ टेंशन अब लेने की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? हाँ, तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ मेरे भाई, अपनी खोपड़ी की ना आपने खुद हिफाजत करनी है, कोई दूसरा आपकी हिफाजत नहीं करेगा। और इस ज़माने में खोपड़ी को ख़राब करने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा मुअस्सिर चीज़ मोबाइल है। जिसको बैठे बैठे पागल होने का शौक हो, पहले ज़माने में भी पागल होते थे। कोई पत्थर लगा, सर पे गहरी चोट आई, पागल हो गए। समझ में आता है भाई पत्थर लगने से इंसान क्या होता है, पागल। बाइक पे जाते हुए गिर गया बगैर हेलमेट के, सर पे गहरी चोट आई, पागल हो गए। बीवी ऐसी मिली, इतनी खतरनाक बीवी मिली, 2-4 साल तक बर्दाश्त किया, 5-6 साल, 10 साल के बाद जाके शौहर क्या हो गया, पागल। समझ में आता है 10 साल बीवी से फायदा भी उठाया तो चलो उसकी टेंशन भी। औरत पागल होती थी शौहर की नाइंसाफियों की वजह से, सास के तानों की वजह से, एकदम नहीं पागल होती थी। 10 साल सास के ताने बर्दाश्त करके आखिरत में बहुत बड़ा सवाब का जखीरा जमा कर लिया। 10 साल के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या हो गई, पागल हो गई। तो चलो समझ में आया कि 10 साल सवाब भी तो कमाया ना बर्दाश्त करने का, आखिर में पागल हो गई। अब जो पागलों के केसेस सामने आ रहे हैं, बैठे बैठे क्या हो रहा है, पागल। वो कैसे हो रहा है पागल? सोने के लिए लेटा, मोबाइल में देखा जी मौलाना तारिक साहब का बयान आया है, उसके नीचे फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। भाई ये मौलवी ऐसे, आइंस्टाइन के साथ मौलाना तारिक साहब की तस्वीर, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अब जो मजहब से मोहब्बत करने वाला है वो डिप्रेशन में जाना शुरू होगा। थोड़ी देर में आया डॉलर मजीद महंगा हो गया। तीसरे नंबर पे पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। चौथे नंबर पे इतने लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं। आप कहते हो मैं तो भाग नहीं सकता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये खबरें पढ़ पढ़ के, सुन सुन के और फिर मौलवियों की आपस के झगड़े भी होते हैं उसमें। वो मौलवी कह रहे हैं ये ऐसा है, वो दूसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है, तीसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है। कोई खवातीन के हुकूक पे बात कर रहा है तो खवातीन को ऐसा बना के पेश करता है, कोई मर्दों के हुकूक पे बात कर रहा है तो ऐसा। इतनी खिच पिच खिचड़ियां पकते पकते, बैठे बैठे पागल होना, किसी को देखना होना, तो इस तरीके से इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। उसका तरीका ये है मेरे भाई, अपनी जानों पे रहम करो, मोबाइल को उठा के लॉकर में रख। मैं इसलिए नहीं रख पा रहा कि मुझे सोशल मीडिया में इन रहना पड़ता है, समझ। अच्छा, पागलों की एक और किस्म भी है जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो भी पागल होते हैं। वो होते हैं जो व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, वो व्लॉग्स जिनका आपकी अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक, वो भी पागल होते हैं। व्लॉगर्स ने इस तरह भी पागल किया, लैट्रीन में बैठा हुआ है। अब मैं आया हूँ, थका हुआ हूँ, मैं वॉशरूम में, शुक्र है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऊपर का दिखा रहा है। मैं बैठा हुआ हूँ, लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग। खवातीन के, मैं आटा गूंद रही हूँ, मैं आलू काट रही हूँ। अब मैं सुबह उठ के मैं आलू काटती हूँ, फिर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्चुअली मैं उनको वैन में बिठाती हूँ, बहुत काम होते हैं मेरे सारा दिन। मिलियंस लोग देख रहे हैं यार। हमारे देसी घी पे एतराज हो रहा है, जिसमें हमने थोड़ा मैसेज दे दिया कि यार देखो बच्चे कितने प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं ना बाप के साथ काम में हाथ बटा रहे हो। और
वॉशिंग मशीन पे एतराज हो रहा है कि वॉशिंग मशीन, वो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं थी भाई, वो थी घी के लिए, उसमें कभी कपड़े नहीं धुले। अच्छा खैर, तो लैट्रीन में बैठा हुआ हूं मैं बहुत थक गया हूं, अब मैंने सोना है, अब मैं बर्गर खा रहा हूं, अब मैं बोतल पी रहा हूं। ये भी पागलों की, वो पागल नहीं है जो व्लॉग बना रहा है, उसको पता है कौम पागल है। उसको क्या पता है, उसको पता है कौम क्या है, वो तो बहुत अकलमंद है। उनको तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इस बेरोजगारी में तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं था, इतना अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है कि कैसे पैसा कमाया जाता है। हलाल तो है, मैं हराम नहीं कह रहा उस पैसे को, पागलों से तो पैसे कमाना बहुत सवाब की बात है, लेकिन कौम पे होता है कि ये भी थोड़े दिनों में तुम भी पागल हो जाओगे। फिर ना वो व्लॉगर्स है ना, जब आपने आज उनका व्लॉग देखा, वो लैट्रिन में बैठा हुआ था और आपका डाटा ही खत्म हो गया, इनको ये टेंशन होती है यार जल्दी से बैलेंस डलवाओ, उठा कब है लैट्रिन से, वॉशरूम से बैलेंस डलवाओ, बैलेंस ये देखने के लिए कि वॉशरूम में बैठा ही तो नहीं है अभी तक। सुबह उठ के देखते हैं सबसे पहले कि यार कोई नया क्लिप आया है उनका कि नहीं आया। तो इसका मतलब आप मेंटली क्या हो चुके हो, पागलों। देखो किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास बैठो जो खुद पागल ना हो, वो तुम्हें बताएगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पागल्स। जितनी पागलों की किस्में दरियाफ्त हुई है ना, इतनी दुनिया में किसी चीज की किस्म नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत एबनॉर्मल है ना, इसका मतलब वो थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा पागल है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को देखा होगा बैठे हुए हैं ना, यूं 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 टांगे ला रहे होते हैं, देखा है आपने भाई? आपने देखा होगा बैठा हुआ ना यूं 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 यूं, आप मजाक समझ रहे हैं, हकीकत में ये पागल है। आप ये ना समझे कि ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी इस बंदे में है, वरना नॉर्मल आदमी बैठा है तो यूं आराम से बैठा होगा, यूं करके टांग। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास जब कोई आता था ना, एक साहब आए, बड़े जबरदस्त आदमी थे, बड़े ऑफिसर थे वो, तो वो मेज पे एक वो रखी हुई थी प्लास्टिक ना, जो मेजों के ऊपर नहीं रखी होती, तो वो बैठे हुए हजरत से बात कर रहे हैं, प्लास्टिक को ना यूं करके घुमा रहे हैं यूं कर फोल्ड करते हैं प्रेसी। मैं हजरत के चेहरे को देख रहा था, हजरत का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था, हजरत का बस नहीं चल रहा था, भाई तू छोड़ दे, आराम से बैठना, हमें उलझन हो रही है देख। लेकिन मेहमान थे इकराम में, कुछ कह नहीं रहे थे। फिर हजरत ने फरमाया यार बैठ के पूरी रेड लगा दी उसकी प्लास्टिक की, क्या कर दी, रेड लगा दी। तो कुछ बैठे हुए होंगे यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ बैठे हुए बिला वजह खुजा रहे होते हैं। एक नफ्सियाती डॉक्टर ने बताया कि हमारे पागल खाने में ना एक शख्स आया, तो बिल्कुल नॉर्मल था, हम उससे बातचीत करते थे, हमें लगा यार ये तो कहीं से भी पागल नहीं है, तो ये तो बेहतरीन ज़हीन आदमी है। कहने जब वो सोने के लिए लेटा ना, तो सर यूं ऊपर रखा हुआ उसने, तकिए पे नहीं लगाया हुआ, तकिए से थोड़ा ऊपर। डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा तेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा। उसने कहा ये तकिया पहले से एक और ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। यानी उसको ये वहम हो गया था कि ये दो तकिए हैं, हर जगह उसको यही वहम होता था। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अगर आप पागल नहीं है तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। यानी उसको ये वहम था कि तकिया ऑलरेडी रखा हुआ है, लिहाजा वो गर्दन और पूरी गर्दन अकड़ जाती थी सुबह तक। अब आप बताओ ये कोई हैरानगी की बात है? ना तो पागल की बहुत सारी अजीब अजीब नफ्सियाती लोगों की किस्में होती हैं। कुछ लोग सुबह शाम गरीबों को बुरा भला कहते हैं, समझ लो कि क्या है, पागल है, मेंटल क्या हो गया है, खोपड़ी क्या हो गई है। और पागल जहां भी होगा ना, उसके पीछे डिप्रेशन होगी। खुश आदमी पागल नहीं होता, ये ज़हन में रखना। खुशियां इंसान को नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आती हैं। पागल हमेशा वो होता है जो किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में हो, किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में। फिर वो अपनी डिप्रेशन को छुपाने के लिए भी मुस्कुरा रहा होता है मीडिया पे आके।